Tell me what is payroll and what is payroll management? बोलो बोलो. बोलो. Payroll is the list of employees who get salary from the organization. And payroll management, what is that? Very good. Payroll is the list of employees and payroll management is the process of giving salaries to the employees. Okay. Now see, payroll management is a word which involves a lot of contemplation and a lot of looking at it through various dimensions. Salary देना है process करके, this is not an easy task. Why? Why I taught you? Because आपको बहुत क्लास के स्टार्ट में हम एक चार्ट बनवाए थे जिसमें ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी, आईटी डिक्लेरेशंस माइनस डिक्लेरेशंस करके हम आपको डिडक्शंस करके एक चार्ट बनवाए थे. So you can understand that आप ESI पढ़े, उसमें मंथली कंट्रीब्यूशन होता है, which means कि up to 21,000, the person whose salary is up to 21,000, that person will have to contribute mandatorily to ESI. Now there could be a person whose salary is 10,000, there could be a person whose salary is 10,500, there could be a person whose salary is 10,900. Can you imagine the calculations? For almost for every individual, the organization has to make a different calculation, a different tax level, a different deduction. There would be many employees who would have taken loan from the organization, right? तो उनके लोन का EMI कटेगा, deductions में वो भी आएगा. There are so many calculations, there are so many deductions and payments. The leave sanctioned for every individual would be different, right? Leave sanctioned, there could be a half day leave, there could be full day leave, there could be earned leave, there could be privileged leave, there could be sick leave, there could be casual leave. So you can imagine कि उन सब का data रखना is not easy, right? So आपको आपकी सैलरी कट के हाथ में मिल जाती है, आपको इतने से ही मतलब है. But this is important for you. Come in. But this is important for you as an employee. Acha, understand it like this. Understand it like this. You come to college, 75% attendance is must to appear for exam, right? Despite the fact that you are interested in class, okay? Despite the fact that you are interested in class and you like to attend lectures, you like to gain knowledge, you like coming to college, अगर आपका attendance नहीं बने तो क्या आपको थोड़ा डिस्टर्ब नहीं लगेगा? लगेगा ना? मान लीजिए आप सारा क्लास एकदम ईमानदारी से कर रहे हैं और आपको मंथ के एंड पे डेट इसमें पता चलता है कि मेरा तो अटेंडेंस बना ही नहीं, आप क्लास पे कंसंट्रेट कर पाएंगे क्या? थोड़ा मोटिवेशन तो जरूर कम हो जाएगा कि क्लास करो ना करो, अटेंडेंस तो मिलता ही नहीं करेगा. इसके बावजूद कि आपको क्लास करना अच्छा लगता है, इसके बावजूद कि आपको कॉलेज आना अच्छा लगता है क्लास करने के लिए, राइट? यू हैव प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स बट यू पीपल स्टिल कम टू कॉलेज. कुछ अलग लगता होगा, कुछ बेहतर लगता होगा आपको, तब आप कॉलेज आते हैं. लेकिन अटेंडेंस बनना भी तो जरूरी है. अब imagine this with an employee who's working in an organization and salary is involved. If he is working, he has taken a leave of half day और उसका फुल डे लीव काट लिया. फूड कूपन्स मिलते हैं जिसमें से कि एक बहुत नॉमिनल सी सैलरी से आपका डिडक्शन होता है, जैसे 250, 200, 250 रुपए ऐसे डिडक्ट किया जाता है और पूरे मंथ का आपको कूपन दिया जाता है. तो आप जब कैंटीन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, देन यू give one coupon to that canteen वाला and he'll give you the food. बहुत थोड़ा सा पैसे लिए जाते हैं
But say for example, you have not given your you have not taken that food coupon for that month और फिर भी पैसा कट गया तो अच्छा नहीं लगेगा. Then you need to go to HR and then settle all that कि मैंने नहीं दिया है कूपन, आप अपने लॉगबुक्स को चेक कीजिए. And then he'll say that okay, this amount will be credited to your account in the next month, right? अगले मंथ की सैलरी के साथ आपका ये 300-400 जो भी है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा. Understood? So likewise, payroll process is also not simple. The organization has to take into account various things and the fact कि सैलरी किसी की डिस्टर्ब या गलत नहीं होनी चाहिए, वरना employees will not be able to concentrate on their work. Okay, they'll not be able to concentrate on their work. अब हम समझते हैं कि पेरोल प्रोसेस ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं होता है कि मतलब कि मेरा मन में आया तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में अपना पेरोल प्रोसेस कर दिए. आपको कॉम्पेंसेशन में हम पढ़ा चुके हैं कि कॉम्पेंसेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगता है तो 4-5 चीजों का ख्याल रखा जाता है जो वहां की पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की. पेड लीव है या अनपेड लीव है, आपको पेरोल में वो डेटा फीड करना होगा ना. स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस जैसे ESI, ये तो गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से आपको देना होगा. PF आपको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से देना होगा, राइट? मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट के हिसाब से देना होगा. तो कुछ लॉ भी है, कुछ स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस भी है which the payroll management has to take into account before processing the salary, right? The entire payroll management, yani ki salary, the management of giving salaries to the employees can broadly be classified into 5 different steps. पूरा पेरोल मैनेजमेंट को हम 5 डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए. द फर्स्ट वन इज प्री पेरोल प्रोसेस, पेरोल के पहले वाला प्रोसेस, प्री पेरोल प्रोसेस. द सेकंड वन इज पेरोल प्रोसेस. द थर्ड वन इज पोस्ट पेरोल प्रोसेस. द फोर्थ वन इज पे आउट and the fifth one is reporting. Now I will explain you what all these processes are and what all, and which are the activities which are involved in them. Switch on your cameras, everyone. Except Manish, no one has switched on the camera. Now Sanskar. The others, Mahima. Switch on your cameras. Be connected to the class even when you are online. Pre-payroll process. See, it's a regular thing for an organization. It's a regular thing for an organization that you don't write anything. Khushi, I'll make you write. Just listen to the lecture first. क्योंकि अगर आप लिख लेंगे और समझ नहीं आएगा तो फिर बाद में कभी नोट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में ऐसे भी नहीं आएगा. सुन लेंगे तो यू विल कीप इट रिटेन, या कहीं और से भी पढ़ोगी ना तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा. See, pre-payroll process. As the name suggests, you can understand that what is pre-payroll process, the process before payroll. Okay. See, for an organization which is an average organization with sufficient number of people, it's a normal thing that people will leave the organization and people will join the organization, right? लोग join भी करते रहते हैं और छोड़ते भी रहते हैं. In that case, collecting data for those people who come to organization and who leave the organization is the work of payroll management, right? Acha, what is the difference between data and information? Raw facts and figures आप कुछ भी collect कर रहे हैं, that is data, and when that data is processed to provide you an information that will be in an arranged manner, that is information. जैसे बिहार गवर्नमेंट ने बोला कि कोविड के कितने केसेस आए, वो डेटा कलेक्ट कीजिए.
पटना में जितने हॉस्पिटल्स हैं वहां से डेटा कलेक्ट हो जाएगा, कितने लोग आए, कितने कोविड का टेस्टिंग हुआ, कितने लोग मर गए, कितने लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। लेकिन अगर सरकार ने ये बोला कि हमको ये डेटा ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि पटना डिस्ट्रिक्ट में कोविड का कितना केसेस आया, तब क्या होगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, डेटा निकालना पड़ेगा उसमें से, और जब आप उसको प्रोसेस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन, something which can inform you about something, that will become information. Okay. So similarly, what happens that data is collected from every employee. Say for example, this institution is an organization and they're paying the faculties. Okay, they'll take my ID, my employee ID, they'll take my number of classes, they'll take my monthly, they'll take my leave, they'll take my holidays, they'll take any extra thing if it is giving any extra deductions which is meant to be. So all these things will be collected. Is it not pre-payroll process? ये pre-payroll है ना, feed करने के पहले. Planning is what? Pre-payroll. This is the first step. Now you come to the second step. What happens in second step is payroll process. Now you'll feed all that data into the software of payroll. Payroll का software आता है. In that payroll software, to process it, software में design होता है ना, system बनाया रहता है. To design it as an information. Then you get this information. Information in what form? In the form of your gross salary and net salary. आपको पेरोल में कितना पैसा मिला ये कैसे पता चलेगा? ये पेरोल में जब आप सारा डेटा आपके बारे में फीड किया जाएगा, आपका लीव, आपका अटेंडेंस, आपका बोनस, आपका इंसेंटिव, आपका लीव विदाउट पे, आपका कोई फेस्टिवल का बोनस होगा या एनीथिंग, डिडक्शंस होगा आपका, then you arrive at your gross salary and net salary. You arrive at gross salary before deduction and net salary after deductions. The net salary is your in-hand salary, right? This is the payroll process. आपको सिर्फ पेरोल प्रोसेस तक ही मतलब होता है ना? आप जब काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पेरोल प्रोसेस तक मतलब है. आपको in-hand salary आ गई, आपका पैसा कट गया, जहां जहां पहुंचना था तो वो पहुंच गया. बट पेरोल मैनेजमेंट का काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है. पेरोल में आपका पैसा कटा, वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा जैसे ईपीएफ का पैसा कटा, तुम्हारे प्रोविडेंट फंड का पैसा कटा, पैसा कहाँ स्टोर होता है? किस बॉडी में? हाँ पूरा बोलो, ईपीएफओ. हाँ वहां पैसा जाता है. वहां पैसा कौन पहुंचाता है? एम्प्लॉयर आपका. वो कट के ही विल मेक श्योर, ये पोस्ट पेरोल बता रहे हैं कि आपका पैसा कट गया, आपको इनहैंस सैलरी आ गई, यू आर हैप्पी, दिस मच इज व्हाट यू नीड टू डू, दिस मच इज स्टिल वेयर यू आर कंसर्न. बट व्हाट अबाउट द पोस्ट पेरोल थिंग? This amount has been remitted to the proper government bodies or the bodies where it is supposed to be or not is the duty of payroll management. उनका ही काम है ना कि आपका पीएफ का पैसा काट के वहां जमा करना है जहां पर कि जमा होता है, ईएसआई का पैसा काट के जमा करना है, वहां से रिसीप्ट जनरेट करना है. आपका एक आईडी होता है, अकाउंट नंबर होता है पीएफ का, उसमें पैसा आपका आपके नाम पे जमा होता है. ये सारी चीजें पोस्ट पेरोल में होती है, होगी ना? यानी आपकी सैलरी मिल जाने के बाद भी पेरोल मैनेजमेंट बहुत काम करती है, जैसे कि पीएफ का, ईएसआई का, लोन्स वगैरह का पैसा जमा करना, राइट? उसके अलावा देखिए, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, you know how, I mean, you understand this very well that accounts is so important to the organization, and also you know the fact that salary is an operating cost for the organization and it is a huge cost.
बहुत बड़ा पैसा किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपने लोगों को सैलरी देने में जाता है ना। तो क्या ये अकाउंट्स बुक में जाता है या नहीं कि सैलरी में कितना पैसा खर्च हो, जाता है ना। अकाउंट्स के बुक में ये जाएगा कि कितना पैसा किस टाइम पे सैलरी पे कितना खर्च किया ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपके अकाउंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में एचआर अकाउंटिंग करके भी एक टर्म आता है। We do all these things because now we consider human resource as the intellectual capital of the organization. We know the cost incurred and the revenue generated from that cost. That is why we maintain that record. Understood? So अकाउंट्स बुक में सैलरी का सारा इंफॉर्मेशन देना ये भी पेरोल का काम है। और इससे ऑफ कोर्स आपको कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन बिजनेस वालों को तो मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन को मतलब है। The next thing, you know, have you heard of the financial report? Financial report of any organization is prepared to give out the status of health of that finance of the organization. ठीक है, reporting is very important part of any organization because that way they'll come to know what were the cost incurred and ये बहुत एस्पेक्ट से समझा जाता है। जैसे जरूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही ब्रांच हो, 4-5 ब्रांच भी हो सकता है। दवा वगैरह की कंपनी होती है, 4-5 ब्रांच होता है अलग अलग स्टेट्स। ये ऑर्गेनाइजेशन को अपने अपने नॉलेज के लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि किस किस ब्रांच में कितना कॉस्ट लग रहा है हम लोगों को मैन पावर पे, राइट। क्योंकि ये सारी चीजें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह में भी हेल्प करती है, मतलब ये सब लिंक्ड होता है बहुत सारी चीजों से। अगर कोई आपने देखा है कि ये प्लांट बहुत लॉस में चल रहा था, कंपनी ने शट डाउन कर दिया वहां का प्लांट, मारुति वगैरह का काफी जगह पर प्लांट शट डाउन हुआ है ना, इसीलिए लॉस में चल रहा है, वहां लॉस ऑपरेट नहीं हुआ, फिर वहां के लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया है बाकी जगह ब्रांचेस पे। तो दिस वे पोस्ट पेरोल प्रोसेस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं और हमको एज एन एम्प्लॉय पेरोल तक ही काम होता है, बट एम्प्लॉयर को एज एन एम्प्लॉयर ही हैज टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ पोस्ट पेरोल थिंग आल्सो। ओके, पोस्ट पेरोल में ये सारी चीजें रिपोर्टिंग आ गई, पोस्ट पेरोल में आपका अकाउंट बुक पे नाम देना आ गया, पोस्ट पेरोल में आपका कितना पैसा कटा, उसको सही से रिमिट हुआ वो अपनी जगह पे या नहीं, रिसीट जनरेट हुआ, तभी तो आप आईटीआर वगैरह भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न तभी भरते हैं ना, रिसीट वगैरह उसके साथ अटैच करते हैं। ओके, this is the third process. Then we come to the fourth process. The fourth process is payout. Payout में क्या होता है? Say for example, this organization, if we consider this institution's image as an organization, this is paying their faculties. We are being paid by this organization. You can be paid by 3 methods: cash, check and bank account. Generally क्या होता है? बैंक अकाउंट में जनरली किया जाता है। ठीक है, बैंक अकाउंट में देने के लिए देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना एक बैंक अकाउंट होगा, किसी बैंक में अकाउंट होगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट करती होगी बैंक को कि भाई आज ये तारीख हो गया है, अब हमें अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करना है, इंफॉर्मेशन के साथ कि किसको कितना पेमेंट करना है, सबकी सैलरी अलग अलग होगी, किसको कितना पेमेंट करना है। अब जिसको जितना पेमेंट करना है उस हिसाब से बैंक को ऑर्डर किया, लेकिन उसके लिए ये भी तो जरूरी है कि इसके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, ये भी वो चेक करेगी, है ना। दिस इज पे आउट एंड देन यू हैव फाइनली रिपोर्टिंग। व्हाट इज डन इन रिपोर्टिंग? इन सारी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिपोर्ट के तौर पर प्रिपेयर किया जाता है कि सैलरी वगैरह कितनी दी जा रही है, क्या हमें सैलरी कट करने की जरूरत है या क्या हम लोगों की सैलरी और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं which are considered to be very generous when it comes to paying their people. जैसे Coal India Limited, people are very happy to work in Coal India Limited. एग्जीक्यूटिव कैडर तो तुम छोड़ दो, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में भी लोगों को इतना पैसा मिलता है। This is pending
more than 58%, 60% या उससे थोड़ा ज्यादा ही पेमेंट को अपने उस पैसे का करती है एम्प्लॉयज को पैसा देने में. People are very happy to work in these organizations. तो सैलरी का रिकॉर्ड एक तरीके से आपको ये भी बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ कैसा है, एंड शुड वी नीड टू कट डाउन और डू वी हैव द स्कोप ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट या किसी का